Okay, so yesterday's class, what we saw is we create a relationship between the tables. We saw what are the different types of those relationships, how we can read those relationships, one to many, many to one, right? So again, the type of relationships, active, inactive, how this filter is going to pass through these relationships and filter another table that we see in practical, right? So let's create more relationships between remaining tables. So I'm having this territory dim. This territory dim contains the information for country, region, continent. So each region having its own unique key. Let's say this region, northwest region having assigned key is 1, northeast is 2. So like that we have a different region. So this particular region belongs to which country and then continent, राइट. सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेरिटरी डील पे अवेलेबल है. सो इफ इन द एनालिसिस, मुझे अगर एनालिसिस ऐसे करना है कि कौन से रीजन का कितना सेल है, राइट. कंट्री वाइज मुझे सेल देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स का सेल कितना है, कनाडा का सेल कितना है, फ्रांस का कितना है. सो हाउ वी कैन अचीव दिस, वी नीड टू, what we need to do is we need to select first one visual, and in that particular visuals, let's say मैं यहाँ पे एक क्लस्टर कॉलम चार्ट ले रहा हूँ, और इस कॉलम चार्ट में मैं एक्स एक्सिस में फील्ड ले रहा हूँ टेरिटरीज का. मेरा जो कंट्री का कॉलम है इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे. एंड हमारे पास जो सेल्स फैक्ट टेबल की, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल के लिए ऑर्डर क्वांटिटी ले रहा हूँ इन द वाई एक्सिस. सो व्हाट इट शोइंग इज, मुझे एक्स एक्सिस पे मुझे क्या मिल रहा है, कंपनीज, कंट्रीज के नाम मिल रहा है. यहाँ पे मैंने अगर इसको थोड़ा ओपन किया फुल स्क्रीन, देखो मुझे एक्स एक्सिस पे कंट्रीज के नाम तो मिल रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो ऑर्डर सेम दिखाई दे रही है, ये फिल्टर आउट नहीं हो रहा है. So how we can resolve this issue? We need to create a relationship between this territory dim to the sales pack table. किस की के बेसिस पे हम करेंगे? This territory dim contains sales territory key which is used in this sales fact table as a foreign key. So मैं उस sales territory key के साथ, this is my territory key, I will just connect this sales territory key to this territory key in the sales fact tables. It shows me it having the one to many relationships. Territory dim contains a sales territory key which is having unique values, but the same time sales fact tables contain territory key which is having multiple values, duplicate value. That's why one belongs to territory dim, many or star belongs to the sales fact table. So I'll just activate these relationships. And now if I go back to the visualization, I can able to see यहाँ पे मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का एक फिल्ट्रेशन लग रहा है. क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑलरेडी लेट्स से यहाँ पे कस्टमर की पे मैंने कुछ फिल्ट्रेशन डाल के रखा हुआ है, इसलिए वो ऑर्डर क्वांटिटी 3 जो है वो कौन से रीजन का कस्टमर है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन निकाल दिया. नाउ दिस पर्टिकुलर विजुअल शो मी how much United States having order quantity, but Australia having order quantity, and so on, right? So this relationship is one to many which we create with the sales fact. Same times we can create the relationship between territory dim to the return fact tables in order to calculate कि कौन से region की कितनी return quantity आ रही है. So मैं again sales territory key को drag कर रहा हूँ यहाँ पे territory key के basis पे with the one to many relationships, and I'll say save. I'll create this one to many relationships. Now यहाँ तक clear है how we create the territory dim tables with the sales fact tables and return fact table, right? यहाँ तक सबको समझ में आया? Okay, sir. Right. So now
we have this product category table, this product name table, right? So ठीक है, तो ये टेबल्स में मैं मुझे रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है। तो अगर मुझे हिरार्किकल टेबल्स में रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है तो मैं कैसे करूँगा से ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे लेट्स से एक टेबल है जिसको मैंने नाम दिया लेट्स से कैटेगरी। ठीक है, ये मेरा कैटेगरी का टेबल है। जिसको मैं नाम दिया है लेट्स से कैटेगरी। ठीक है, और इस कैटेगरी टेबल के अंदर लेट्स से आई एम हैविंग कैटेगरी की एंड कैटेगरी का नाम। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा डेटा है। सो लेट्स से आई एम हैविंग कैटेगरी की 1, कैटेगरी की 2 एंड कैटेगरी की 3। ऐसा मेरा कुछ कैटेगरीज है। लेट्स से मेरे पास कुछ कैटेगरीज है। लेट्स से कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है एंड कैटेगरी सी है। ठीक है, ये एक मेरा टेबल है कैटेगरी का। लेट्स से कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, मेरे पास कैटेगरी की का एक कॉलम है जिसकी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज कैसी है, एक में 1 ए है, एक में लेट्स से बी है, एक में सी है। ऐसी मेरे पास कुछ 3 कैटेगरीज अवेलेबल है। फाइन। सो लेट्स से आई मेरे पास दूसरा एक टेबल है जो कैटेगरी की, जिसमें सब कैटेगरीज है। एंड यहाँ पे फिर कॉलम्स कौन से है, यहाँ पे कैटेगरी की है, देन यहाँ पे जो नेम है ये है सब कैटेगरी का नेम है, एंड तीसरा कॉलम है यहाँ पे सब कैटेगरी की है। ठीक है, 3 कॉलम है यहाँ पे। सब कैटेगरी टेबल है ये, इसमें कैटेगरी की है, कैटेगरी सब कैटेगरी का नाम है एंड सब कैटेगरी की है। तो पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। लेट अंडरस्टैंडिंग एक्सेल इटसेल्फ। ठीक है, लेट्स से कैटेगरी, दिस इज माय सब कैटेगरी, दिस इज माय प्रोडक्ट। ऐसे मेरे पास 3 टेबल है। कैटेगरी का जो टेबल है यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है की है, जैसे इसको नाम देते हैं कैटेगरी की एंड कैटेगरी नेम। ठीक है, इससे कैटेगरी की 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। इनके नाम लेट से ABC है। दिस इज माय कैटेगरी टेबल। सब कैटेगरी का टेबल में सब कैटेगरी की है, देन सब कैटेगरी का नाम है, एंड देन है कैटेगरी की। ठीक है, लेट्स से सब कैटेगरी का नाम है A1, A2, B1, B2, C1
C2 सब कैटेगरी की लेट से यहाँ पे 1 2 ऐसे पे की मेंशन, ठीक है, या इसको कुछ ठीक है रहना एंड यहाँ पे कैटेगरी लेट से 1 1 2 2 3 एंड 3 है। तो अगर मैं इन दो टेबल्स को ऑब्जर्व करूं तो इसमें रिलेशनशिप क्या बनता है कि आई एम हैविंग वन कैटेगरी, आई एम हैविंग कैटेगरी ए, दिस ए कैटेगरी हैविंग टू सब कैटेगरीज A1 A2, मेरे पास एक कैटेगरी है ए, उसमें दो सब कैटेगरीज है। तो मैं जब कैटेगरी टेबल्स को सब कैटेगरी टेबल के साथ कनेक्ट करूंगा, ऑन विच कॉलम्स वी कैन कनेक्ट, कैटेगरी टेबल को अगर सब कैटेगरी टेबल से कनेक्ट करना है तो किस कॉलम के बेसिस पे कनेक्ट करेंगे हम, वी हैव कॉमन कॉलम राइट, कैटेगरी की। इससे क्या पता चलेगा, लेट्स से मुझे पता करना है कि A1 एंड A2 किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। सो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी की 1, कैटेगरी की 1 इज नथिंग बट कैटेगरी ए। सो ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए मुझे, कैटेगरी का नाम लाने के लिए मुझे कैटेगरी टेबल को रेफर करना पड़ेगा। सो मुझे रिलेशनशिप कैसे बनानी पड़ेगी, फर्स्टली आई कनेक्ट दिस कैटेगरी टेबल का कैटेगरी की विथ सब कैटेगरी का कैटेगरी की, राइट। रिलेशनशिप कौन सा बनेगा यहाँ पे, अगर मैं कैटेगरी की एंड दिस कैटेगरी की को कनेक्ट करता हूँ तो कौन से टाइप का रिलेशनशिप बनेगा, बताओ कौन से टाइप का रिलेशनशिप बनेगा, मेनी टू वन, वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, 1 to many. वन टू मेनी, राइट। क्यों वन टू मेनी बनेगा, बिकॉज कैटेगरी की कंटेन यूनिक वैल्यू इन दिस कॉलम एंड इन दिस कॉलम इट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू। सो सेम वे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी टेबल का प्रोडक्ट कैटेगरी की को कनेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट सब कैटेगरी के टेबल के प्रोडक्ट कैटेगरी की से। सो आई ड्रैग दिस कॉलम connect with this column, you see this product category key and this product category key having, this is the unique one in the category but this is the duplications in the subcategories। क्यों duplications है, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज है। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी 1 बाइक्स लिखा, सी यहाँ पे बाइक 1 है तो यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम रिपीट हुआ है। उनकी सब कैटेगरीज है माउंटेन बाइक, रोड बाइक एंड टूरिंग बाइक। तो बाइक्स इस मेन कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज है, रिलेशनशिप बनेगी वन टू मेनी, एल से सेव, ठीक है। वन टू मेनी रिलेशनशिप बन गई। नाउ इफ आई ऑब्जर्व दिस प्रोडक्ट टेबल, ये मेरा जो प्रोडक्ट टेबल है इसमें कहीं पे भी कैटेगरी नाम या कैटेगरी की ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे सिंपल क्या इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का की है, देन प्रोडक्ट की सब कैटेगरी की है, ये प्रोडक्ट जो है वो कौन सी सब कैटेगरी में आता है उसकी की है यहाँ पे, एंड देन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्रोडक्ट की कैटेगरी की मेंशन नहीं है। तो प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी की अवेलेबल है प्रोडक्ट के टेबल में। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट सब कैटेगरीज है तो एक सब कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। जैसे एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल सब कैटेगरीज थी एंड हर एक सब कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो दिस इज द हायरार्की, कैटेगरी सबसे टॉप पे रहेगा, प्रोडक्ट सबसे लास्ट रहेगा। अगर हायरार्की का एग्जांपल मैं बताऊं, लेट्स से वी हैव डेट हायरार्की। डेट हायरार्की में क्या आता है, पहले आता है ईयर, ईयर के बाद आता है क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के बाद आता है मंथ एंड मंथ के बाद आता है डेट, राइट। सो ये क्या हो गई, एक हायरार्की हो गई। वैसे ही दिस इज कॉल्ड हायरार्की
फर्स्ट आएगा प्रोडक्ट कैटेगरी, सेकंड आएगा प्रोडक्ट सब कैटेगरी, देन आएगा प्रोडक्ट. So on which columns we can connect product subcategory and product table. Let's say this is my subcategory का टेबल, जो मेरे पास subcategory का टेबल है, तो मैं कौन से कॉलम के बेसिस पे इसको कनेक्ट करूंगा प्रोडक्ट टेबल के साथ. वी हैव कॉमन कॉलम राइट, प्रोडक्ट subcategory की. So I can connect product subcategory key from this subcategory table to प्रोडक्ट सब कैटेगरी की इन प्रोडक्ट टेबल. सो कौन से टाइप की रिलेशनशिप बनेगी यहाँ पे, विच कार्डिनलिटी इज हैपनिंग. प्रोडक्ट सब कैटेगरी में प्रोडक्ट सब कैटेगरी की जो है वो यूनिक है राइट. वी हैव दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की विच इज यूनिक ओवर हियर, एंड सेम प्रोडक्ट सब कैटेगरी इज डुप्लीकेटिंग इन अ प्रोडक्ट नेम. So relationship बनेगी one to many. So I'll simply drag this product subcategory to, I'll select product subcategory from product subcategory table and product subcategory from this product table. Relationship is one to many. I'll say save. I connect one to many with this product tables. Now in final approach, if I observe this sales fact table, sales fact tables में क्या information है, it contains only informations for particular product. मेरे पास यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की है, मेरे पास कोई सब कैटेगरी की नहीं है, कोई कैटेगरी की नहीं है, नथिंग. मेरे पास प्रोडक्ट है. तो इस प्रोडक्ट का कौन सी सब कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू. कैसे करेंगे वो देखेंगे हम अभी. सो बट इफ आई वांटेड टू कनेक्ट this product table with this sales fact table, so we can use product key which is a primary key in a product dimension table but a foreign key in a sales fact table. So simply what I can do is मैं product key table को drag करके इस product key के साथ connect करूँगा. Again relationship will be happening one to many. Why? Because product table contain यूनिक प्रोडक्ट्स. हर एक प्रोडक्ट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल रो है, लेकिन सेम प्रोडक्ट सेल्स फैक्ट टेबल में रिपीटेटिव है. क्यों रिपीटेटिव है, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मल्टीपल कस्टमर्स ने ऑर्डर किया हुआ. दैट्स व्हाई इट इज रिपीटेटिव. ठीक है. So we can say simply say save over here, and we can have successfully able to connect this product key table to the sales fact tables. Again also we have return fact tables, and this return fact tables also contain product key. So we can connect this product key to this product key in the return fact tables with the one to many relationships. We say save. So this relationship is also active, and here we complete our model for the report. So this overall structures we can say this is a Power BI model. ठीक है, समझ में आया ये. ओके. ओके. कितने टाइप की रिलेशनशिप होती है, One to many to many, and many to one. यस, वन टू many to one and many to many. Yes. 4 टाइप्स की कार्डिनलिटी होती है. रिलेशनशिप्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्टिव रिलेशनशिप्स, इनएक्टिव रिलेशनशिप्स. सेकंड क्वेश्चन कि कितनी रिलेशनशिप्स पॉसिबल होती है 2 टेबल्स के बीच में. 2. 1. Multiple relationships are possible between 2 tables, but only one relationship is active, remaining all relationships are inactive. Okay. Okay, fine. So next questions. In Power BI model, which cardinality is preferably used?
Sorry, sir. In Power BI model, when you create a Power BI model, relationships and all these things, which cardinality we prefer? कार्डिनलिटी वर्ड सुनते ही आपको 1 to many, many to 1 ये दिमाग में आना चाहिए, कार्डिनलिटी. Okay. तो 1 to, we always prefer 1 to many relationship, तो 1 to many कार्डिनलिटी. Okay, sir. ओके, फाइन. सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसको कहा जाता है स्कीमास. इसको क्या कहा जाता है? स्कीमा. ये होल स्ट्रक्चर है जिसको मैं मॉडल बोल रहा हूँ. हेलो, ये जो होल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने मॉडल बोला है अभी, इसको कहा जाता है स्कीमा. ठीक है, Schema. यस, स्कीमा. SCIMA. SCHEMA, Yeah, please. Okay. Scheme. schema. ठीक है, so we have 3 types of schema. First is a star schema, second is snowflake schema, and third one is galaxy schema. ठीक है, so what are Okay. those? Let's understand with this tool. Okay, let me delete this. So understand करते हैं कि what is star schema. In star schema we have one fact table and multiple dimension tables are there. Let's say I'm having this dim1, this is my dim2, this is my dim3. Those are my dimension table. हाँ, dim मैं dim mention कर रहा हूँ. लेट्स से मेरे पास एक फैक्ट टेबल है and we have multiple dimension table and all the dimension tables connect to this fact tables with 1 to many relationships. let's say ये dimension table इसको ऐसे connected है, this dimension table ऐसे connected है. ये let's say इसको ऐसे connect है. ठीक है, मेरे पास ये जो मेरे डायमेंशन टेबल्स हैं, ये डायमेंशन टेबल्स एक फैक्ट टेबल से 1 to many रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है. दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक अ स्टार, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टार स्कीम. मेरे पास एक फैक्ट टेबल है एंड मल्टीपल डायमेंशन टेबल उस फैक्ट टेबल को 1 to many रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो हम उसको कहेंगे स्टार स्कीमा. स्टार स्कीमा इज ऑलवेज प्रेफरेबल, ऑलवेज रिकमेंडेड बाय बेस्ट प्रैक्टिसेस कि आप फॉलो करो स्टार स्कीमा को. जितना पॉसिबल है आपका मॉडल आप स्टार स्कीमा में बनाओ, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्कीमा विच इज नथिंग बट अ स्नोफ्लेक स्कीमा. स्टार स्कीमा समझ में आया? Okay. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा. स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है? लेट्स से आई एम हैविंग दिस डायमेंशन टेबल विच इज कनेक्टेड, this dim1 connected to the fact table. बट ये जो मेरा डिम है, let's say मैं ये रिलेशनशिप्स डिलीट कर रहा हूँ अभी. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डिम है, डिम कैटेगरी या एंड लेट्स से डिम सब कैटेगरी. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ये जो डायमेंशन है कैटेगरी की डायमेंशन, ये डायरेक्टली फैक्ट टेबल्स को कनेक्ट नहीं होगी, ये पहले इस डिम को कनेक्ट होगी एंड देन दिस डिम कनेक्ट टू द. सो
in the Snowflake schema, some dimension tables are not directly connected to the fact tables, but it is indirectly connected to fact table through another dimension. फर्क समझ में आ रहा है? मेरे पास स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन टेबल जो है वो डायरेक्टली फैक्ट टेबल्स को कनेक्ट नहीं होता, वो किसी और डायमेंशन को कनेक्ट होता है, एंड देन दैट पर्टिकुलर डायमेंशन कनेक्ट टू द फैक्ट टेबल. सो आई कैन से देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस फैक्ट टेबल टू दिस डायमेंशन टेबल. अगर ऐसा सिनारियो है सो मैं कहूँगा वो स्नोफ्लेक स्कीमा है. अंडरस्टूड? सो हमारा स्कीमा कौन सा है? स्नोफ्लेक स्कीमा, राइट. हमारे पास भी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये जो दो डायमेंशन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सेल्स फैक्ट को. वो किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है इस प्रोडक्ट डीम के थ्रू. फाइन, अंडरस्टैंड हो रहा है? मोस्टली ये दो स्कीमास प्रेफरेबली यूज किए जाते हैं. थर्ड स्कीमा जो है गैलेक्सी स्कीमा, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है गैलेक्सी स्कीमा, जिसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स रहेंगे एंड मल्टीपल फैक्ट टेबल्स स्नोफ्लेक्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करते करते आपको दिखाई देंगे. सो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा. वैसे स्कीमास को, वैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम क्या करेंगे, कहेंगे गैलेक्सी स्कीमा कहेंगे. बट मोस्ट प्रेफरेबली यूज किया जाता है स्नोफ्लेक स्कीमा एंड स्टार स्कीमा. अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास पूछे, स्टार स्कीमा एंड पूछे, तो आप सिर्फ स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा बता सकते हो. गैलेक्सी स्कीमा बताने की जरूरत नहीं है. अगर सपोज उसने पूछा देन आप उसके रिगार्डिंग उनको बता सकते हो. लेकिन अगर उसने सिर्फ स्कीमास के रिगार्डिंग पूछा है कि आपको पूछा पावर बीआई के इंटरव्यू में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमास इन पावर बीआई, देन यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा. डेफिनेशंस कैसे बतानी है मैंने आपको बताया कि स्टार स्कीमा कैसे होता है, फैक्ट टेबल्स को all the dimension table directly connected with one to many relationships. The structures look like a star, that is why it is called as a star schema. It is the most preferable and recommended schema by Power BI best practices. सेकेंड स्कीमा होता है स्नोफ्लेक स्कीमा. इस स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता पावर बीआई या फैक्ट टेबल के साथ, वो इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसी अदर डायमेंशन को, एंड देन दिस डायमेंशंस कनेक्ट टू द फैक्ट टेबल्स. So we can say sum of dimensions having indirect relationship with the fact tables. So ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे स्नोफ्लेक स्कीम. ठीक है, क्लियर है ये? यस नो कुछ तो बोलो. सर वो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, जो अभी? हाँ, ये जो डायरेक्ट आपने बताया, डील कैट टू डील सब कैटेगरी कैट इन फैक्ट टेबल. स्नो स्टार स्कीमा तो समझ में आया? यस यस. तो स्नोफ्लेक स्कीमा में अगर हमने जो क्रिएट किया हुआ स्कीमा है इसकी अगर बात करूं, तो लेट्स से कैटेगरी डीम, ये कैटेगरी का, ये कैलेंडर का टेबल, ये कस्टमर का टेबल, ये टेरिटरी का टेबल, ये टेबल्स, ये डायमेंशन टेबल्स फैक्ट टेबल्स को डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं ना वन टू मेनी के साथ. लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, इन दो टेबल्स के बारे में, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते. ऐसे डायरेक्ट आप रिलेशनशिप नहीं बना रहे हो इन टेबल्स के साथ, सेल्स फैक्ट के साथ. ओके. इससे कनेक्ट कर रहे हो आप प्रोडक्ट कैटेगरी को सब कैटेगरी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये दो डायमेंशन है. देन आप अगेन सब कैटेगरीज को प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अगेन दोज टू आर डायमेंशन. तो आप एक डायमेंशन को दूसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उस दूसरे डायमेंशन को आप तीसरे डायमेंशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एंड देन फाइनली तीसरे डायमेंशन के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो फैक्ट टेबल को. तो अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया कि कैटेगरी बाइक, ओके. फिल्टर जो है बाइक का
ये बाइक का फिल्टर पास करेगा पहले सब कैटेगरीज में, जितने सब कैटेगरीज बाइक कैटेगरी के अंदर आती है वो यहाँ पे फिल्टर आउट होगी, फिर उस पर्टिकुलर सब कैटेगरीज की फिल्टर करेगी इस प्रोडक्ट टेबल को। यहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, तो जितने प्रोडक्ट उन सब कैटेगरीज में आते हैं जिनकी कैटेगरी बाइक है, वैसे प्रोडक्ट यहाँ पे फिल्टर होंगे, एंड दोज प्रोडक्ट विल फिल्टर दिस सेल्स फैक्ट टेबल in order to calculate order quantity, sales and whatever the values we need to analyze. So ऐसे फिल्टर पास होगा इन रिलेशनशिप के थ्रू सेल्स फैक्ट, डायरेक्ट नहीं पास होगा, इनडायरेक्टली पहले यहाँ पे जाएगा सब कैटेगरी में, फिर प्रोडक्ट में जाएगा एंड देन सेल्स फैक्ट में। सो ऐसे ओके। स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्नोफ्लेक स्कीमा। के मतलब वो साइकिल बनानी पड़ेगी वैसे तब जाएगा। ओके। विच साइकिल? नहीं, साइकिल, साइकिल इन द सेंस कि मुझे, अगर मैंने ये सेल्स फैक्ट का टेबल देखा यहाँ पे, ओके। पर्टिकुलर सेल्स फैक्ट के टेबल में, इफ आई सी द सेल्स फैक्ट टेबल, यहाँ पे कहीं पे भी मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी की एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी की का कॉलम नहीं दिखाई देगा। कॉलम ही नहीं है, सो हाउ वी कैन कनेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी की टू द सेल्स फैक्ट टेबल? नहीं कर सकते, राइट? किस कॉलम के बेसिस पे कनेक्ट करेंगे, कोई कॉमन कॉलम ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट की है। Again, if I'm having this product key, so I can connect this product tables to the sales fact table, but this product table contain product subcategory key, so I can connect this subcategory to this subcategory table, this subcategory table having product category key, so मैं प्रोडक्ट कैटेगरी टीम को कनेक्ट कर सकता हूँ सब कैटेगरी के साथ। सो मुझे ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा उनको, ऐसे नहीं कर सकता कनेक्ट, because they don't have the common key. कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज की कीज इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कीज है। ओके। ओके, यस। फाइन। सो वी क्रिएटेड दिस रिलेशनशिप्स एंड हमारा मॉडल भी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज का एक पेन है। अगर मैं कोई रिलेशनशिप यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये टेबल कौन सा है, राइट? यहाँ पे टेबल के नाम दिखाएंगे, रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी दिखाएंगे, कॉलम कौन सा है, आप यहाँ से भी कॉलम्स को चूज कर सकते हो, वट एवर कॉलम्स यू वांट टू पुट। रिलेशनशिप को एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन चेंज करना है या सिंगल ही रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशंस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आपको इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो। रिलेशनशिप को सेलेक्ट करो एंड डू द चेंजेस वट एवर यू वांटेड टू डू, राइट? दिस प्रॉपर्टीज पेन। ठीक है, ओके। अगेन यहाँ पे एक और ऑप्शन से देखो, यहाँ पे ऑल टेबल्स का जो बाय डिफॉल्ट जब आप मॉडल बनाते हो तो वो ऑल टेबल्स के नाम से यहाँ पे क्रिएट होता है, आप क्रिएट करते हो। जैसे मैंने रिलेशनशिप बना दी, ये ऑल टेबल्स को मैं रीनेम कर सकता हूँ। जैसे ऑल टेबल्स को मैं कुछ भी मेरे हिसाब से जैसे मुझे रीनेम करना है वैसे कर सकता हूँ, या ऑल टेबल बाय डिफॉल्ट है। मैं नया लेआउट यहाँ पे बना सकता हूँ, इन नए लेआउट्स को मैं नाम दे सकता हूँ। लेट्स से लेआउट को नाम दिया मैंने कि कैटेगरी, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ऐसा कुछ नाम दिया मैंने। मुझे उतने ही टेबल इसमें दिखाने, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, लेट्स से आई एम हैविंग दोस टेबल्स ओवर हियर, मेरे पास सब टेबल्स हैं। मुझे कितने टेबल्स यहाँ पे शो करने हैं? लेट्स से मुझे शो करना है कैटेगरी का टेबल, तो मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके गया। सब कैटेगरी का ड्रैग किया मैंने। ये जो रिलेशनशिप जो बन के आएगी हुई, ये आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई है ऑलरेडी। आपको अगर पर्टिकुलर टेबल्स ही देखने, लेट्स से आपका ये जो ऑल टेबल का स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स है,
आपको समझ में नहीं आ रहा है रिलेशनशिप्स कौन सी कहाँ पे कनेक्ट की हुई है, तो आप एक नया लेआउट ओपन करके उसमें पर्टिकुलर टेबल्स ट्रैक कर सकते हो एंड रिलेशनशिप चेक कर सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी ऐसी रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी की। जैसे मैंने अगेन सब कैटेगरी प्रोडक्ट डिम भी यहाँ पे ड्रैग किया, तो ये दिखाएगा कि प्रोडक्ट सब कैटेगरी कनेक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट के साथ। सेल्स पैक को ट्रैक किया तो अगेन दिखाएगा कि सेल्स पैक टेबल्स कनेक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट डिम के साथ। सो रिलेशनशिप चेक करना या पर्टिकुलर किसी टेबल्स के रिलेशनशिप्स अलग अलग लेआउट में यहाँ पे शो करना इन ऑर्डर टू जो फ्यूचर में कोई और बंदा अगर आपका रिपोर्ट्स देखता है या उसमें कुछ एक्सटेंशन उसको एनहांसमेंट करना है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स मॉडल देखने से अच्छा वो यहाँ पे सिंपल वे में दो दो तीन तीन टेबल का ग्रुप करके यहाँ पे मैं मल्टीपल ऐसे लेआउट बना के यहाँ पे रख सकता हूँ उनको प्रॉपरली नेमिंग देके। ठीक है, सिंपल मॉडल हो तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉडल मॉडल में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा करते हैं। एक ऑल टेबल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स वो क्रिएट करके रखते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आया। ऑल टेबल्स एंड मल्टीपल लेआउट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। ऑटो लेआउट क्या होता है? ऑटो लेआउट पे मैंने कनेक्ट किया तो ये जो आपका ऑल टेबल का लेआउट है जो आपने खुद अरेंज किया हुआ है आपके हिसाब से, पावर भी उसको उसके हिसाब से प्रॉपरली ऐसा अरेंज करके देगा। अगर आपको सही लगता है तो आप रखो, नहीं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिलीट लेआउट करूँगा तो ये लेआउट निकल जाए। ठीक है, इन मॉडल सेक्शंस अगेन टेबल व्यू में मुझे टेबल्स के नाम दिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है मॉडल करके। अगर मैंने ये मॉडल को सेलेक्ट किया तो मॉडल्स में देखो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा। जो जितनी भी रिलेशनशिप्स मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो रिलेशनशिप्स के नाम दिखेंगे। देन आई कैन एबल टू सी द टेबल्स, राइट। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन क्रिएट किया हुआ है यूजिंग डैक्स फंक्शन तो वो मेजर्स में दिखेगा। देन देर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड कैलकुलेशन ग्रुप्स। अगर आपने कोई कैलकुलेशन ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो वी हैव दिस टेबल सेक्शंस एंड वी हैव दिस मॉडल सेक्शंस। We will going to see this कि how these calculation groups are created because it is an important concept। ये अभी न्यूली ऐड हुआ है पावर बीआई में, पहले ये फीचर पावर बीआई में नहीं था। इसको यूज करने के लिए हमें थर्ड पार्टी टूल्स यूज करने पड़ते थे, लेकिन अभी ये पावर बीआई में ये फंक्शंस ऐड हुआ है। सो जब डैक्स वगैरह कवर कर लेंगे, रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे हम, उस टाइम पे हम कैलकुलेशन ग्रुप्स को चेक करेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट कैलकुलेशन ग्रुप्स। ठीक है, सो रिलेशनशिप मॉडल इज कंप्लीटेड and from the next lectures what we will do is we will starting DAX data analysis expressions। DAX की इंट्रोडक्शन लेंगे एंड DAX को स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंड करना, पढ़ाई करना। कुछ इनिशियली दो तीन लेक्चर्स हमारे DAX में अंडरस्टैंडिंग में, कुछ फंक्शंस अंडरस्टैंड करने में जाएंगे। देन आफ्टरवर्ड्स we will see Power BI visuals, different types of Power BI visuals which will we be going to use for this reporting purpose। जो ये मैंने विजुअल्स लिए हुए हैं ना, क्लस्टर कॉलम चार्ट्स, ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट विजुअल्स है उनकी इंट्रोडक्शन लेंगे हम कि विजुअल्स को कहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, वो ऑप्शंस की एक और लुक करेंगे। वंस इट इज़ डन देन वी विल स्टार्ट फॉर एक्चुअल रिपोर्टिंग। एक रिपोर्ट जनरेट करने का हम बाद में स्टार्ट करेंगे। वंस रिपोर्ट इज जनरेटेड फिर हम पावर बीआई सर्विसेज का पार्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम रिपोर्ट्स को किसी और यूजर्स के साथ शेयर करते हैं, उनको गवर्न करते हैं, गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस की कंसेप्ट वगैरह वो वहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो कुछ ऐसा एक हमारा रोड मैप रहेगा। वंस पावर बीआई सर्विसेज आपका फिनिश होगा देन वी विल talk about the projects and all these things। ठीक है, so if I'm expecting the lectures might be from the next week के end तक आपका DAX and we will targeting to finish Power BI visuals। And then 14 onwards we will start development of the reports। So I'm expecting by this month end we'll finish Power BI with I'll also giving you some projects also। So by 30th we will finish this।
ओके 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 सर। फाइन, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इनफ है इतना। विल कनेक्ट ऑन मंडे सेम टाइम। हेलो यस।